Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके प्रश्न भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi launches Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, says it will provide livelihood opportunities to migrant workers and develop rural infrastructure. And in the business week ended yesterday, domestic stocks climbed more than 2.5%, Sensex regains 34,000 mark and Nifty reclaims 10,000 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रवासी श्रमिकों को जीवन यापन के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण मूलभूत ढांचे का विकास होगा। और कल समाप्त साप्ताहिक व्यापारिक सप्ताह के दौरान घरेलू शेयर बाजार 2.5% से अधिक की तेजी में रहे। सेंसेक्स फिर 34,000 के ऊपर और निफ्टी फिर 10,000 के ऊपर पहुंचे। Prime Minister Narendra Modi today launched a massive rural public works scheme, Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, in 6 states. He said this Abhiyan will provide livelihood opportunities to the migrant workers and will help in the development of rural areas by creating local infrastructure. At the outset, Prime Minister paid his homage to the martyrs who sacrificed their lives while protecting the border in Ladakh, saying that he wants to assure that the entire country stands with the army and families who lost their beloved ones. While launching the campaign, the Prime Minister said today is a historic day as a huge campaign has been started for the welfare of the poor people and for their employment. He said the main objective of this campaign is to provide employment opportunities to the people according to their skills and interest. He said country knows the needs of the poor people and this campaign is a medium to fulfill those needs by providing work opportunities in the vicinity of their homes. Mr. Modi interacted with some people who came back to their villages after the lockdown. He said after the lockdown, talented people returned to their homes and this is a time to convert this crisis into an opportunity by creating rural infrastructure with the help of these talented migrant workers. The Prime Minister said it is the endeavour of the government that workers get jobs near their homes. He said till now they were developing cities, now they will help their villages. Mr. Modi said 50,000 crore rupees will be spent on this mega campaign and it will help in creating modern facilities in the rural areas. He said the mapping of the skills of all labourers
has also been started so that they can get work according to their skills. Hailing the contribution of rural India in fighting coronavirus, the Prime Minister said, "The way villages have fought coronavirus has taught us a big lesson to the cities." Mr. Modi said the government is making every effort so that people do not have to take loans from anyone while living in the villages during this corona pandemic crisis. He said the Self-Reliant India campaign, Atmanirbhar Bharat Abhiyan, started with the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, and within a few weeks about 1.75 lakh crore rupees were spent on the scheme. He said free ration and pulses have been provided to 80 crore poor people in 3 months. Mr. Modi said more than 10,000 crore rupees have been transferred to 20 crore women Jan Dhan accounts. He said this was made possible due to the infrastructure created in the past years for the smooth transfer of money directed in the accounts of the poor people. He said for self-reliant India, self-reliant farmers are equally important, and by keeping this in mind, the government has abolished several discriminatory laws in the past few days. He said now farmers can sell their produce to anyone and anywhere without any hurdle, and it will empower them. प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। ये अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटते प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में ये अभियान सामान्य सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर पुणे से सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये जानना है कि जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी पता चला है कि टैक्स पे करना पड़ता है 10% वगैरह, तो क्या उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय पर्सन हूँ और ऑलरेडी इनकम टैक्स भरता हूँ, तो उसका फॉर्म वगैरह भरता हूँ, तो इसका अलग से भरना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है या जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका जो रिटर्न है जो उस दायरे में आता है तो उसके हिसाब से जो टैक्स रेट है। हरवीर जी, आपकी आवाज एको कर रही है, तो अगर आप थोड़ा सा जी अब हाँ जी, अब क्लियर है। हाँ, मैं वही कह रहा था इनको कि अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो टैक्स के प्रोविजन है उसके तहत हमारी कोई टैक्स की देनदारी बनती है या नहीं बनती। सभी मामलों में नहीं बनती। काफी सारा इस तरीके के भी स्कीम्स हैं जिसमें इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती इन्वेस्ट करने से स्टॉक्स में। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो पे करके, और जो आपका रिटर्न है रिटर्न फाइल उसी सेम फॉर्म में आपको फाइल करना होता है, डिक्लेयर करके। Harveer ji, we were tracking the story where the Prime Minister today launched a massive rural public work scheme, Garib Kalyan Rojgar Abhiyan. What do you have to say about this scheme, the relevance of this scheme, the benefits that it will bring to the workers and especially the migrant population, and particularly about them developing their villages into cities?
Actually, this is a very important initiative on two fronts. One is that those migrant workers went back to their villages due to this COVID pandemic, and it is not necessary that they will get job opportunities in their villages. And Manrega is there. Government increased allocation for Manrega also only due to this region. Government identified particular districts and states where maximum migrant workers went back to their villages, and that's why there was a challenge to provide them livelihood in their villages. So that's why this scheme has come up, and government is spending 50,000 crore in a mission mode kind of project for 125 days, and different skill set workers will be required for these tasks, and definitely they will get job opportunities according to their skill. So it is very important for them to get jobs in their own places, because they went back from the cities and urban centers, maybe some industrial areas. At the same time, this massive infusion of liquidity in the rural area will also strengthen rural economy. But will it not affect the infrastructure projects that are being done? And yes, it will also increase the pace of development in the villages, basically, to create better infrastructure. More and more investment will be there to provide better kind of roads or sanitization or drinking water or telecom infrastructure. All kind of projects are there involved into this. Joining us now is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, we welcome you. Good evening, Rajesh. Good evening, Sonu Madam, and good evening, Arvind ji. Good evening. My question is about this recent news. RBI is investing about $1 billion in U.S. Treasury bills, and our forex reserves are rising, above $500 billion. We sold recently $21 billion of Treasury bills to offset or to compensate for the payment flow of. And if we are comfortable with 400 billion, we are comfortable with 450 billion, 500 billion. At least the extra money which is coming now should be invested in Indian hospitals or Indian infrastructure. Why is it going to use this US Treasury bill? Because they have recently bought $1 billion worth of dollars of US Treasury bills. Why investing in US when you can invest in our Indian infrastructure in hospitals, roads, or schools or playgrounds? Thank you. आप एक कॉमन मैन की तरह बताइए सर, क्यों ऐसा हो रहा है? No, actually, you see, RBI has this money because these are investment for certain specific period and purposes. It is not necessary that the same kind of investment RBI can make into the domestic projects and all, because domestic projects comes through some schemes and departments and private sector or public sector invest in that. So it is basically the bond market is totally different from other kind of investment into this, whether it is infrastructure project or any other kind of project, manufacturing or so. Actually this is a different kind of set where how bond market behaves in this case. So that's why this is the reason RBI is doing that. इस कोविड की स्थिति से जूझने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनसे ही जुड़ी हुई है हमारी अगली स्टोरी भी। 1,70,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए मुफ्त खाद्यान्न और नकदी द्वारा मदद की घोषणा की थी। इस योजना के कुशल क्रियान्वयन पर केंद्रीय और राज्य सरकारों की निगरानी लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना की पहली किस्त के अंतर्गत 8 करोड़ 94 लाख लाभार्थियों को 17,891 करोड़ रुपए समय सीमा से पहले ही वितरित किए गए हैं। पहली किस्त के अंतर्गत 20 करोड़ 65 लाख महिला जनधन खाताधारियों के खाते में 10,325 करोड़ रुपए की कुल राशि डाली गई। दूसरी किस्त में इन्हीं के खातों में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए और तीसरी किस्त में इसी श्रेणी के सभी खाताधारियों को कुल 10,312 करोड़ रुपए दिए गए। इससे पहले कि हम अगले कॉलर से संपर्क करें, लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम।
अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है और अब हमारे साथ पुणे से ही जुड़े हुए हैं पांडुराम। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी, आपका क्या सवाल है? जी बोलिए। हाँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैंने कुछ शेयर लिए हैं। हेलो आप पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने शेयर लिए हैं कुछ। हेलो, हम आपको सुन सकते हैं पांडुराम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं एक शेयर लिए हैं कुछ और मेरे डिमांड में है, डिमैट में। तो मुझे और शेयर लेना है तो क्या मुझे ऑनलाइन वगैरह करना पड़ेगा? क्योंकि ये एज में हमको ऑनलाइन होता नहीं है, तो परचेज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप डीमेट अकाउंट में आप जाके, आपका डीमेट अकाउंट होगा ही, उसके माध्यम से आप खरीद सकते हैं जो भी स्टॉक्स आपको खरीदने हैं। और अगर आप किसी जो इस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो देते हैं ब्रोकर्स, उसके जरिए आप कर सकते हैं। Okay, we have Fayaz from Delhi with us. We welcome you, Fayaz. Please go ahead and ask your question. जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जैसे कि एक्सपर्ट लोग और आप लोग भी बता रहे हैं कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, तो क्या ये जो फैसला है, मतलब डिसीजन है कि इसको बढ़ाना है, तो ये कुछ इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? माना कि सर कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हुई है, लेकिन अभी जब क्रूड के प्राइसेस उतने हाई भी नहीं है, तो ये फैसला कितना सही लगा है? देखिए, आपकी जो बात है वो तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्रूड का प्राइसेस $40-42 के आसपास चल रहा है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं, जो डीजल है और पेट्रोल है, वो लगभग डीजल तो रिकॉर्ड के आसपास ही चला गया दिल्ली में तो, और बाकी जगहों पे भी। और ये आपका पेट्रोल प्राइसेस भी काफी ऊंचे और लगातार पिछले 8-10 दिन से इसमें बढ़ोतरी टर्म्स में हो रही है। असल में पहले क्या था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थे तो केंद्र सरकार ने इसमें ड्यूटीज बढ़ाई है, एक्साइज ड्यूटी, और उसके अलावा राज्य सरकारों ने लगातार इसके ऊपर जो कोविड का जो इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू के ऊपर आया था उसमें ड्यूटी बढ़ाई है। जैसे दिल्ली में लेवल बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में ₹7 जो है इन्होंने डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया था और पेट्रोल के ऊपर उतना नहीं बढ़ाया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों नेक टू नेक प्राइस हो गए, जबकि डीजल को ट्रांसपोर्ट का फ्यूल माना जाता है, उसका साइक्लिक इम्पैक्ट होता है प्राइसेस के ऊपर। तो ये थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सोचना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं। तो पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं कि एक्साइज ड्यूटी और वैट को थोड़ा सा उसको रेशनलाइज किया गया है। तो ये सरकारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बात सही है कि इधर एक तो कोविड की वजह से काफी सारा प्रेशर है लोगों के ऊपर, इनकम्स भी उसके ऊपर भी कंस्ट्रेन है उस तरीके का, तो उसमें ये पिंच कर रहा है, प्राइसेस लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है काफी। तो ये अब पॉलिटिकल कॉल है सरकारों की कि वो किस तरीके से इसमें कंज्यूमर को राहत देना चाहते हैं, या फिर ये एक संतुलन बनाना पड़ेगा उनको। आइए अब चले मुंबई, जहां से केशव हैं हमारे साथ। केशव जी सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट ईयर मैंने एक स्मॉल कैप कंपनीज, IT कंपनीज के शेयर्स लिए हुए थे। जब मैंने शेयर्स बाय किए उस टाइम उसका ट्रैक रिकॉर्ड सब अच्छा था, लेकिन अभी 2 महीना पहले कुछ शेयर्स उन्होंने प्लेज किए हुए हैं और प्रमोटर स्टेक कम हुआ है। तो ऐसी कंपनीज का फ्यूचर क्या होगा आगे चल के, और प्रमोटर स्टेक कितना % होना चाहिए सर? थैंक यू। देखिए, प्रोमोटर्स का स्टेक तो जब वो लोन लेते हैं उसके लिए डेट लेते हैं, काफी सारे प्रोमोटर्स ने तो बहुत ज्यादा लेवल तक 80-90% तक अपनी इक्विटी को उन्होंने प्लेस किया है। डिपेंड्स के जो इस कंपनी की बात आप कर रहे हैं उन्होंने कितना किया है, लेकिन वो एक अलग पक्ष है। आपको ये देखना पड़ेगा जो कंपनी है वो किस सेक्टर में काम करती है और उसका आप जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो ऑर्डर बुक है या उसकी टोटल इनकम और प्रॉफिट्स हैं, वो सब आप एक बार देख सकते हैं। हर साल
और हर क्वार्टर पे कंपनी अपना जो रिजल्ट्स है वो सबमिट करती है स्टॉक मार्केट में, उनको देना होता है वो सारा, तो उसको थोड़ा सा आप रिव्यू करके अपना कॉल ले सकते हैं। और आइए अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर, देखते हैं सप्ताह में उनका कैसा प्रदर्शन रहा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच कल समाप्त व्यापारिक सप्ताह के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में अच्छी मजबूती दर्ज हुई। प्रमुख सूचकांकों ने भारत और चीन के बीच तनाव और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रतिकूल प्रभाव को दरकिनार कर दिया। ये तेजी प्रमुख रूप से सूचकांक में भारी योगदान वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में वृद्धि के बल पर आई। निफ्टी फिर 10,000 के स्तर को पार कर गया और सेंसेक्स भी 34,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 2.81% की तेजी से कुल 951 अंक बढ़कर 34,732 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.72% की तेजी से 272 अंक बढ़कर 10,244 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार का भी बता देते हैं। बीएसई मिड कैप सूचकांक इस दौरान 1.62% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.65% का उछाल आया। Okay, now we go on to Delhi and talk with Satish Kumar. Satish, we welcome you to Market Mantra. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी, सवाल पूछें अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल काफी लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमें अब चाइना से अपना ट्रेड बंद कर देना चाहिए, तो क्या अब या कभी भविष्य में हम उस स्थिति में है कि हम चाइनीज सामान को बैन कर लेना बंद कर सके, या क्योंकि उसने तो हमारी पूरी मार्केट पे कब्जा सा कर रखा है और वो जो सामान हमारे को देता है वो कहीं से हम बना भी नहीं पाते। जैसे कितनी वो लड़ियां 10 रुपए में 100 बल्बों की लड़ी दे देता है वो हमें, जो ये FM है ब्लूटूथ वाला वो भी वहीं से आता है। हजारों ऐसे आइटम है, तो क्या हम उस स्थिति में है कि हम बिना उस सामान के रह पाएंगे? और एक सवाल और, जैसे हमारे देश में लोग 10 लाख की गाड़ी वाले भी पेट्रोल के 1 रुपया 2 रुपए को भी वो इतनी अहमियत क्यों देते हैं कि भाई जैसे दाल वगैरह 1 रुपए पे भी वो एजिटेशन करने लगते हैं, जबकि वो करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हैं, लाखों रुपए की गाड़ी में 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन 1-2 रुपए के पेट्रोल के ऊपर ही वो एकदम से ही एजिटेशन करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। ये भी बताइएगा। दोनों ही सवाल बड़े रोचक हैं हरीश जी। देखिए, एक फैक्ट है कि जो हमारे जो 2 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है अमेरिका और चीन, उसमें चीन लगभग अमेरिका के स्तर पर है और हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट भी काफी ज्यादा है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि पहले जो जैसे ये बता रहे हैं कि जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं और ये सब जो है, तो ये सब पुरानी बातें हो गई, वो बहुत छोटा मसला है। ये आपको देखना पड़ेगा कि एक तो जो चाइनीज कंपनीज हैं उनका जो असर है हमारे यहाँ, वो तमाम सारे फील्ड्स में है। वो टेक्नोलॉजी में है, वो आईटी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो पावर में है, टेलीकॉम में है, और आपका जो हमारे कंज्यूमर के तमाम सारे जो गैजेट्स हैं उसमें है, और सोलर में है। तो ये बड़े एक तरीके से उस तरीके के मसले हैं। और जो आप ये बता रहे हैं कि जो छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जो सदर बाजार वगैरह में थोक में बिकते हैं, वो सारा ट्रेडर्स उस तरीके से करते हैं ट्रेड यहाँ पर ला करके। तो एक तो ये, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है, चीन के साथ हमारा एक काफी एक दौर अभी जो है तनाव का है, जिस तरीके की घटनाएं लद्दाख में उधर हुई हैं, तो इसको लेकर के सरकार का भी एक रुख है और जनमानस के अंदर भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि क्या हम इनका बायकॉट कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं। तो तमाम सारी कॉल भी ली जा रही हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, बट ये इसमें कुछ भी बहुत जल्दबाजी में कहना संभव नहीं है और ये न एक झटके में ये कदम उठाया जा सकता, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से मैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, और हमें ये भी बताना चाहिए लोगों को कि जो तमाम सारी हमारे स्टार्टअप्स और जो इसके कंपनियां हैं रिटेल की या दूसरी आईटी कंपनी है, उसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज का आया है हमारे यहाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो द्विपक्षीय व्यापार का, उसको इतनी आसानी से एक झटके में खत्म करना संभव नहीं है। इसको साथ में ये भी है कि मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी ये है हम लोगों का सहमति है, और इसमें काफी सारा जो लीगल इश्यूज भी होते हैं। तो ये तो सरकार को अपनी जो नीतियां हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा। साथ में ये बात सही है कि ये
सस्टेनेबल नहीं है कि हम लोग इतना इंपोर्ट करते रहे जरूरत के प्रोडक्ट्स का। हमें कहीं न कहीं सेल्फ रिलायंस के लिए उसमें अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग बेस को बड़ा करना होगा। हम लगातार कह भी रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का जो हमारा अभियान है उसे मजबूत करें, हम लोग भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो इधर अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स ने जो पैकेज अनाउंस किया था कोविड के, उसके लिए भरपाई के लिए नुकसान की और 20 लाख करोड़ का, उसके साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए स्टेप्स भी हैं। तो आई होप कि उस पर कदम हम आगे बढ़ाते हैं और ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। और हमारे जो डोमेस्टिक जो कॉरपोरेट्स हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते कि हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकें जिनकी हमारे घरेलू मार्केट में खपत है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपना खुद का मार्केट है, तो व्हाई कांट वी डेवलप दोज प्रोडक्ट्स हियर। तो ये इनको भी कॉल लेना पड़ेगा और इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इतना बड़ा मार्केट होते हुए हम लोग क्यों इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। और अब मुंबई से रत्नाकर हैं हमारे अगले कॉलर। रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, मेरा सवाल है कि लास्ट वीक में तो सेंसेक्स मोर देन 1000 पॉइंट चढ़ गया और 34,000 के ऊपर हो गया। तो ये अपना आर्थिक व्यवस्था में प्रोग्रेस होने के संकेत है क्या? और दूसरा कि उसमें डाउनफॉल अभी नजदीक के पीरियड में आ सकता है क्या और कितना तक आ जाए? देखिए, एक चीज आप थोड़ा ये होगा कि एक तो जैसे अभी हमने न्यूज में भी चर्चा की कि काफी सारा इनफ्लो आया एक पर्टिकुलर कंपनी में, उसका बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। दूसरा ये है कि दुनिया भर के मार्केट्स इंप्रूव हुए हैं क्योंकि जो रिकवरी होने का जो संकेत है वो काफी मजबूत दिखने लगा है और जो डिमांड्स जिस तरह की थी वो जो एस्टिमेट्स या एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रहा है। हमारे यहाँ भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। हालांकि जो कोविड पैंडेमिक है उसका हमारे यहाँ जो संक्रमण है उसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और काफी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो एक तरीके से अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो उस सब का भी मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट वोलेटाइल नहीं होगा। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि जो मार्केट पे लिक्विडिटी आई है उसका भी इम्पैक्ट जो है इसको जो अपवर्ड ट्रेंड मार्केट में देखने को मिला है उसकी भी वो एक वजह भी है। Moving on, let's see how the US markets fared yesterday. In fact, the Wall Street lost ground, reversing earlier gains as spiking cases of COVID-19 and Apple Inc.'s announcement of fresh store closures heightened concerns that a new round of lockdowns could be imposed and delay an economic recovery. All three major US stock indices were in the red after 2 days of range-bound sideways movement. The Dow Jones fell 0.8%. The S&P 500 declined 0.6%, while the Nasdaq Composite remained almost flat. Harveer, what do you think? You have touched upon how the markets may behave in the coming week. Volatility is going to be the name of the game in the coming week as well, or will the good run continue? Actually, because this kind of uncertainty due to this pandemic worldwide, every day numbers are changing, and countries want to start talking about lockdown and all. Despite, but in our country there is a indication that we don't want any lockdown. But हरवीर जी, आई एम अफ्रेड समय समाप्त हो गया, तो हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, Harveer. धन्यवाद, thank you. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi launches Garib Kalyan Rojgar Abhiyan, says it will provide livelihood opportunities to migrant workers and develop rural infrastructure. And in the business week ended yesterday, domestic stocks climbed more than 2.5%. Sensex regains 34,000 mark. Nifty reclaims 10,000 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.